علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے خانیوال سے۔ خانیوال کے قریب مسافر وین میلسی لنک کنال میں جا گری، بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد ڈوب گئے۔ 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک لاش کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شیخوپورہ سے میاں چنو آنے والی وین موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے تلمبا کے قریب میلسی لنک کینال میں جا گری۔ بدقسمت وین کے تمام سوار نہر میں ڈوب گئے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ واقعے کے ایک روز بعد وین عبدالحکیم پل مصطفی آباد سے ملی۔ ریسکیو ٹیموں نے وین کو کینال سے نکالا تو 9 افراد کی لاشیں بھی مل گئیں۔ لاپتہ 2 افراد کی لاشیں کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ وین میں سوار 4 افراد کا تعلق میاں چنو جبکہ 6 کا تعلق لئیے سے تھا۔ وین کے شرکا شیخوپورہ میں عزیز کی فوتگی سے واپس آ رہے تھے لیکن بدقسمت سواروں کو علم نہ تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے جنازے اٹھیں گے۔ مسافروں کا بکھرا سامان دیکھ کر فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ دل خراش واقعے پر ورثہ بھی غم سے نڈھال ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے تمام لاشوں کو لواحقین کے سپرد کر دیا ہے۔ دنیا پور میں کنویں کی اینٹیں اکھاڑتے ہوئے 2 مزدور کنویں کے ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر پہنچ کر آپریشن کرتے ہوئے مزدوروں کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ دنیا پور کے نواحی علاقے اڈا چٹ نہر کے قریب 2 مزدور کنویں سے اینٹیں نکال رہے تھے۔ اس دوران کنویں کا خستہ حال ملبہ نیچے گر گیا جس کے نتیجے میں دونوں مزدور ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع پر ریسکیو کی ٹیم اور تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچی۔ بروقت آپریشن کرتے ہوئے دونوں مزدوروں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا اور طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال دنیا پور منتقل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ میں گھر میں آگ لگنے کے واقعے کو حادثے کا رنگ دینے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سنگ دل بیٹے نے والد کے ڈانٹنے پر اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی تھی۔ پولیس نے شک کی بنا پر ملزم کو حراست میں لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں اپنے والدین اور 5 بہن بھائیوں کو آگ لگانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈسکا کے محلہ گلا شیخاں والا میں علی حمزہ نامی ملزم نے 22 اپریل کو رات کے وقت تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ آگ سے جل کر ملزم کے والد اور والدہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے جبکہ 5 بہن بھائیوں کو زخمی حالت میں لاہور میو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسپتال میں ملزم کے بہن بھائی بھی جاں بھر نہ ہو سکے۔ ملزم نے واقعے کو حادثے کا رنگ دیا تھا۔ پولیس نے شک کی بنا پر ملزم کو حراست میں لے لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ پاک پتن میں زمین کے تنازع پر ملزمان نے پیٹرولنگ پولیس کے سامنے محنت کش کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ میں تحفظ کے لیے گئے تو ملزمان نے بلا خوف چیک پوسٹ میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ طوفانی بارشوں نے گندم کی فصل کو شدید متاثر کیا جس کی وجہ سے فی ایکڑ کی اوسط پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان کلیار۔ چنیوٹ میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے سبب گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے کسانوں کو گندم کی کٹائی اور گہائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسان کہتے ہیں حالیہ ہونے والی بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے۔ جہاں پہلے فی ایکڑ 40 سے 50 من گندم ہوتی تھی اب 25 سے 35 من ہو رہی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے ہماری فصل کا بہت نقصان ہوا گندم کا، اور پہلے جیسے ہماری پیداوار گندم کی 40 من ہوتی تھی اب فی ایکڑ 25 من ہوئی ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کو تھوڑا بہت ریلیف دے۔ اس مرتبہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور سالہ باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی گندم کی کٹائی اور گائی میں نقصان ہوا ہے، اوسط پیداوار میں کمی آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اوسط پیداوار کی نسبت گندم پر کیا جانے والا خرچہ زیادہ ہے اور اس سال بارشوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ریلیف فنڈ دے تاکہ بارشوں کے باعث ہونے والے کسانوں کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، سچ نیوز چنیوٹ۔ بھکر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کسانوں کی تیار گندم کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس بلوچ۔
حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کا ہدف پورا نہ ہونے کی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں بارشوں اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو ملک بھر کورونا وائرس کی وبا کی زد میں ہے تو دوسری طرف گندم کی فصلوں کو نقصان کی وجہ سے ملک میں غذائی قلت ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف کسان کی معاشی حالت خراب ہوگی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس سال تیز بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے ہماری فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے، لہذا حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ کسانوں کے زرعی قرضے معاف کیے جائیں اور ریلیف دیا جائے۔ گندم کی فصل بہت متاثر ہوئی ہے، جس کی اوسط پیداوار پہلے سالوں کی نسبت پہلے 20-22 بوری فی ایکڑ آ جاتی تھی، لیکن اس سال تقریباً 8 سے 10-12 بوری تک جا رہی ہے۔ گندم کی فصل کی کٹائی اور تھریشنگ کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اوسط پیداوار میں کمی کے باعث کسانوں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ کاٹن اور مونگی کی فصل کی کاشت کے لیے مفت معیاری بیج اور بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکھر۔ لوئر دیر میں گندم کی تیار فصل کی کٹائی آئندہ ہفتے شروع کی جائے گی۔ کسانوں نے گندم کٹائی کے لیے اوزار خریدنے اور تیز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ دیر میں گندم کی فصل کٹائی کے قریب ہے۔ اس سال بارش ہونے سے دی لور میں گندم کی فصل کافی اچھی ہوئی ہے اور آئندہ ہفتے سے دی لور کے کسان گندم کی کٹائی شروع کریں گے اور گندم کی کٹائی کے لیے لور دیر کے کسان جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بجائے درنتی سے کاٹتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے درنتی اور دیگر گندم کٹائی اوزار تیز کرنے کے لیے لوہاروں کو حوالہ کیے ہیں۔ لور دیر کے بازاروں میں لوہاروں کے دکانوں پر رش ہے، مگر گندم کاشت کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ 300 روپے میں ملنے والے درنتی ابھی مہنگائی کی وجہ سے 500 سے 700 روپے پر ملتے ہیں۔ اس طرح کٹائی کے دیگر اوزار تیز کرنے کی مزدوری کی قیمت دگنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ ٹڈی دل کے غال چنے کی تیار فصل چٹ کر گئے، درختوں اور چارے پر بھی حملہ کر دیا، اسپرے بھی بے اثر ثابت ہوئے، سرسبز درخت خزاں رسیدہ درختوں کا روپ دھار گئے۔ پنجاب کے علاقوں میں ٹڈی دل کی یلغار فصلیں اجاڑ دی، درختوں سے پتوں کا صفایا کر دیا۔ خوشاب کے علاقے نورپور تھل کے 8 دیہاتوں کے بعد ٹڈی دل نے نورپور تھل شہر میں حملہ کر دیا، جس میں مختلف قسموں کی فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سیف نے مختلف علاقوں میں اسپرے بھی کروائے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا، جس کی وجہ سے تھل کے کسان پریشانی کا شکار ہیں۔ جہلم کے نواحی علاقے دیہرہ اور ججیال میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، جس کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے کوئی اسپرے نہیں کرایا گیا۔ بھاول نگر کے علاقے منچن آباد کے موضوعات میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی ہے۔ ٹڈی دل کے پے در پے حملوں نے فصلیں اجاڑ دی، جانوروں کے چارے اور ہرے بھرے درخت چٹ کر گئے۔ اہل علاقہ نے محکمہ زراعت اور اعلیٰ حکام سے اسپرے کرانے کی اپیل کر دی ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، سرکاری گوداموں میں لوٹ مار مافیا کر رہا ہے، لیکن اس کا خمیازہ عوام کو مہنگا آٹا خرید کر بھرنا پڑے گا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے رمضان المبارک میں ہی 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 35 روپے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے طویل لاک ڈاؤن کے باعث مشکلات، اب غریب عوام کے لیے آٹا بھی مہنگا کر دیا گیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار نے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو بہانہ بنا کر 20 کلو آٹے کا تھیلا 35 روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ عبدالرؤف مختار کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 1450 روپے فی من ہو گئی ہے۔ فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے۔ غریب عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ 805 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 840 روپے میں ملے گا۔ سرکار کے گوداموں سے گندم مافیا چوری کر رہا ہے، لیکن جیبوں پر ڈاکہ ہمیشہ کی طرح غریب عوام پر ہی پڑے گا۔ صادق آباد میں بھی رمضان المبارک میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آٹا جو پہلے ہی غریب عوام کی پہنچ سے کوسوں دور تھا، قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے آصف اوان۔ رمضان المبارک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ شہری بلبلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا جو 850 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اس کی قیمتوں کو بڑھا کر 840 روپے کر دیا ہے، جس سے شہری کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ آٹا جو ہے مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا ہے، 35 روپے فی بوری کے حساب سے،
पहले सस्ते दाम में बेच रहे थे किराने वाले जो हैं, स्टोरों वाले जो हैं, अब जो है वो महंगा दे रहे हैं। लिहाजा ये अपील है कि हुकूमत से जो तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। मार्केट में आटे की कीमत पहले 805 रुपये 20 किलो थैली की थी और अब उसमें इजाफा करके 835 रुपये कर दिया गया है। तो ये रमज़ान में आवाम को पैकेज देने के बजाय उल्टा रेट बढ़ा दिया गया है। तो ये अब इंतज़ामिया को चाहिए कि ना कि रेट बढ़ाए बल्कि इस पर रेट पर काबू करे और आवाम को, गरीब आवाम को पैकेज दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। शहरियों का कहना है सरकारी आटा 850 रुपये मिल तो रहा है मगर रोजे की हालत में कई घंटे लंबी कतारों में लगने के बाद कभी मिलता है और कभी नहीं। शहरियों का मजीद कहना है पहले ही महंगाई और लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम करें। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। पंजाब में जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। शुजाबाद में गंदम की 40,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने राजाराम और कोटली निजाबत में भी 12 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और 40,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। बरामद बोरियां फूड सेंटर मुंतकिल करने के लिए फूड इंस्पेक्टर के हवाले कर दी गई हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जालसाज रहमतों और बरकतों भरे महीने में भी बाज न आए, जाली मशरूबात बनाकर अवाम की सेहत से खिलवाड़ करना शुरू कर रखा है। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करके बड़ी मिकदार में जाली मशरूबात बरामद कर लिए। ना खौफे खुदा ना शर्म सियाम, जालसाज वारदातों की अंजामदेही से बाज न आए। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने हमदर्द इंडस्ट्री की निशानदेही पर पेशावर में गोदाम पर छापा मारा तो गोदाम से हजारों लीटर गैर मयारी मशरूब बरामद हुआ। पेशावर ही के एक और इलाके हश्त नगरी में मुजरमाना ज़हनियत के हामिल अफराद को की जाली मशरूबात की पैकेजिंग में मसरूफ थे। हुकाम ने कौम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके जैली मसनूआत बरामद कर ली और गोदाम सील कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अजमत कहते हैं किसी को ब्रांड्स का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। गोदाम मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बड़े जुर्माने किए जाएंगे। लाहौर के इलाके टकसाली में मिल्क शॉप्स की चेकिंग के दौरान 850 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया। 15 दुकानों में मौजूद 5250 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 8 मिल्क शॉप्स को इस्लाई नोटिस भी जारी किए गए हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद और कासिमाबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए हैं। शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद शहर सिटी, लतीफाबाद और कासिमाबाद में जिले इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से लगा के फिल्टर प्लांट नाकार और बंद हो चुके हैं। शहरी पीने के साफ पानी के लिए परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिले इंतजामिया हैदराबाद और कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान की जानिब से लगा गए फिल्टर प्लांट अब मुकम्मल तौर पर बंद और खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से पीने का साफ पानी अब खरीदने पर मजबूर है। ये फिल्टर प्लांट जो है पिछले 3 से 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई हमारा नुमाइंदा आके कोई काम नहीं करता है। इसके ऊपर यहाँ की आवाम इतनी परेशानी है। पानी बिल्कुल नहीं है। पानी के लिए लोग खरीदते फिर रहे हैं। 15-15, 20-20 रुपए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। फिल्टर को हम चाहते हैं कि ये वापस बहाल हो और ये इसका पानी चले ताकि हम इसे भरें और हमारी पॉकेट मनी भी बचे और हमारे बच्चे भी सेहतमंद हों। शहरियों ने मजीद कहा कि फिल्टर प्लांटों पर लाखों रुपए फंड का इस्तेमाल किया गया जो इस वक्त ज़िया हो रहा है, जबकि बेशतर फिल्टर प्लांट बंद होने की वजह से मंशियात फरोशों की आमाजगाह और कचरा कुंडी का मरकज बने हुए हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी नोटिस लेकर शहरियों के लिए साफ और शफाफ पीने का साफ पानी फिल्टर प्लांटों को बहाल करवाकर परेशानी से बचाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांज़ेब अली, सच न्यूज, हैदराबाद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुनावा में कंट्रोल शेड मालिकान ने मुर्दा मुर्गियां नहर में फेंकना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। सीनावा में कंट्रोल शेड मालिकान ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। मुर्दा मुर्गियां नाला सरदार नहर में फेंकना शुरू कर दी, जिससे इलाके में ताफुन फैलने लगा। ताफुन की वजह से 6 बस्तियों के इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं, जिसमें सरापा एहतजाज हैं। उन इलाका मकीनों का कहना है कि ताफुन की वजह से रोजादार को शदीद परेशानी का सामना है। इफ्तार के वक्त तो ज्यादा बदबू हो जाती है। पिछो हेड कनेक्ट सब क्या पता कौन नहर विच मुर्गी सटें दे, ठीक है। अहीं टाइम असां इतने मजबूर है ना, बदबू की वजह कने बीमारियां फैल जापन, डंगर बीमार थींदे पन, इंसान
बीमार थींदे पन। रमज़ान शरीफ दा भी ज़रा एक लिहाज नहीं करन वो लोग जड़े नहर विच मुर्गियां सटन। साडा इहो मुतालबा है भई ये नहर दी सफाई कीती वञे, ये जड़ा मुर्गियां दे गट्टू सटन ये खत्म कराया वञे। मुतासरा बस्तियों में बस्ती सहुवाला, अलीवाला और पत्ती झंडीर मौजा में नहर के साथ साथ ताउफन फैला हुआ है। नाला सरदार दे उत्ते टाइल दे उत्ते खड़े हैं, ये 200-300-400 गट्टू ही टाइम मौजूद है। केड़ा फार्म दे विच मुर्गियां मरदियां नु डाला भरी आंदा ना के नहर वे सट देंदे ओही तां इकट्ठा थींदा इत्थों ना बंदा टप सकदे तां 5-7 वस्ते रोजे रखदे, रोजा कोलो 2-2 किलोमीटर तोणी दी बदबू वेंदी है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहना था कि महकमा अनार के बैलदारों को कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन किसी की कान तक जूं तक नहीं रेंगी। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहना था कि मुर्दा मुर्गियों को नहर में फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नहर की सफाई कराई जाए। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज सिनामा। विजयवाला में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। ताफुन के सबब शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे तजम्मुल कुरैशी। 25,000 नफूस आबादी पर मुश्तमिल विजयवाला के सीवरेज की सूरत हाल बिगड़ गई। निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। लोग मूजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। गंदे पानी की बदबू ने इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। राहगीरों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। सच न्यूज से बात करते हुए विजयवाला के मकीनों ने बताया, विजयवाला सीवरेज का निज़ाम बहुत ज्यादा खराब है। मच्छर बड़े पैदा हो रहे हैं, बच्चों में बीमारियां हो रही हैं। लिहाजा अपील की थी पहले भी इत्थे दे हुक्मरान नूं हुण भी अपील कर रहे हैं कि साबरा सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विजयवाला में जो सीवरेज का निज़ाम है ना, वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। इस सीवरेज के निज़ाम की खराबी की वजह से हमारा नीचे वाला पानी जो है वो भी ख़राब हो चुका और लोगों को हैज़ा हो रहा है, लोगों को पेचस लग रहे हैं और लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ और मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा ही पैदा हो रहा है। इसलिए लोगों को बीमारी से बचाने के लिए हमने गवर्नमेंट से पहले भी अपील की है और अब भी करते हैं। विजयवाला के मकीनों ने यह भी बताया कि हमने विजयवाला की सीवरेज की जो बिगड़ती सूरत हाल है, इसके मुतल्लिक हमने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और मुंतखब नुमाइंदगान को भी बारहा बताया है, लेकिन ताहाल नोटिस ना लिया गया है। कैमरामैन अब्दुर्रज़ाक साहिल के साथ तजम्मुल कुरैशी, सच न्यूज, विजयवाला। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी के नवाही इलाके टिब्बा करीमाबाद में सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया है, जिसके बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कुरैशी के नवाई इलाका टिब्बा करीमाबाद में सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मलेरिया, हेपेटाइटिस सी, पेट की जैसी मूजी बीमारियां लग सकती हैं और इस गंदे पानी और सीवरेज के निज़ाम ना होने की वजह से स्कूल के बच्चों और राहगीरों को आने जाने में दुश्वारी पेश आती है। बेनमाजियों को भी मुश्किल पेश आती है। सियासी रहनुमाओं की कोई तवज्जो नहीं और यहाँ के मकीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं इस जदीद दौर के होते हुए भी। और यहाँ के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि टिब्बा करीमाबाद के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए और बुनियादी सहूलियात मुयस्सर की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, चौक कुरैशी। बहावलपुर की सब तहसील ओद शरीफ की सड़कों के अतराफ तजावुजात की भरमार है, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में अजियत का सामना रहता है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। बहावलपुर की सब तहसील ओद शरीफ अलशम्स चौक पर नाजायज तजावीज़ात की भरमार। नाजायज तजावीज़ात से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा सड़कों की दोनों तरफ रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया। ऐसे लगता है कोई शहर का मेन चौक नहीं बल्कि सब्जी मंडी है। तजावीज़ात की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। नाजायज तजावीज़ात के सबब एमरजेंसी मरीज को अस्पताल ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। एक तरफ थाना और दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी, लेकिन इंतजाम इन रेडी बानों के आगे बेबस नजर आती है। शहरियों ने हुकूमत और मकामी इंतजाम चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी काजी नईम अहमद से मुतालबा किया कि ओद शरीफ अलशम्स चौक को रेडी बानों से खाली कराया जाए ताकि आमदरफ्त में आसानी और शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज, ओद शरीफ। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लिया के बैंक में नासरबाजों की वारदात, रकम निकलवाने के लिए आए शहरी से लाखों रुपए हथिया लिए। सच न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। नौसरबाजी एक मुनज़्ज़म माफिया की शक्ल अख्तियार करती जाती है। लिया में नौसरबाज काफी अरसा से सादा लव शहरियों को लूटने में मसरूफ अमल है।
डगिया में चौकाज़म के निजी बैंक में नौसर बाजू में रकम निकालने के लिए आए शहरी से 1,35,000 रुपए हथिया लिए। सच न्यूज ने वाकया की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में नौसर बाजू के चेहरे वाज़े दिखाई दे रहे हैं। शहरी से रकम हथियाने के बाद 4 मुल्जिमान भागते हुए भी देखा जा सकता है। मुतसरा शहरी का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था, उन्होंने एक नोट निकाल के दिया मुझे कि ये नोट खराब है, इसको चेक करवाएं उधर। तो एक लड़का पीछे से आया, वो मुझे बोल रहा था कि हाँ हो सकता है कुछ नंबर 2 नंबर नोट ना हो, आप गौर से चेक करें। 1,35,000 रुपये, मतलब जितने नोट 70 थे उनके हाथ जितने लगे हैं वो ले गए। जब मैंने दुकान पे जाके गिने तो वो 2,15,000 था, 1,35,000 वो ले गए। चेहरे वाज़े दिखाई दिए जाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार न कर सकी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। रुझान में आवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ने लगी हैं। फल, सब्जी, गोश्त सब महंगाई की जद में आ गए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से ही गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तुफैल। माह सियाम का पहला अशरा गुजरने जाने के बावजूद भी रुझान में महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। फल, सब्जियों, मुर्गी, गोश्त, दालें, चावल समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह खुद सख्ता इजाफा कर दिया गया। माह रमज़ान में शहरी रिलीफ के बजाय तकलीफ में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। आलू 40 रुपये किलो की बजाय 80, टमाटर 20 से 40, खजूर, लीमू 200 से 400 रुपये पर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 100 रुपये इजाफा के साथ 260 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर बात करें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, तो वह मुकम्मल तौर पर गैर फाल होने की वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ने लगी हैं। मार्केटों में सरकारी नरखों पर आमद दरामद ख्वाब बन चुका है, जिसकी वजह से दुकानदार शहरियों से मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से ना तो जुर्माने किए जाते हैं, ना ही सरकारी नरखों पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अपील करते हुए कहा कि आवाम को सस्ती अशिया की दस्तियाबी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, ताकि हुकूमती रिलीफ और सस्ती अशिया की समरात आम आवाम तक पहुँच सके। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़, रुझान। सखर में मुनाफाखोरों की माह सयाम में भी लूट मार जारी है। लीमू की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी रियाज। छोटे छोटे गोल मटोल हल्के सब्ज और पीले रंग के नींबू रेडियों और सब्जी की दुकानों पर फरोख्त हो रहे हैं। रस भरे नींबू गर्मी का तोड़, फ़वाइद का खजाना और रमजानुल मुबारक में सफेद पोश तबके की अफ्तार दस्तरखान का मशरूब बनते हैं। रमजानुल मुबारक में सखर में जहां इनकी मांग में इजाफा हुआ है, वहीं सब्जी फरोशों ने इनकी कीमतें भी बढ़ा दी। को मुतवज्जा करने के लिए सदाएं तो लगा रहे हैं, मगर इनकी कीमतें ग्राहकों को परेशान कर रही हैं। रमजानुल मुबारक में गर्मी को हराने और रोजे में तरोताज़ा रहने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा के साथ फरहत बख्श मशरूबात ही रोजेदार की बेहतरीन दोस्त हैं, मगर महंगे फरोश होने वाले ये दोस्त सफेद पोश तबके से दूर होते जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर। सच न्यूज की काविश नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके का भरम बन गई है। शहरियों की जानिब से इस काविश को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी को रमजानुल मुबारक के बाद भी जारी रहना चाहिए। सच टीवी की इस बहुत अच्छी काविश को सराहते हैं। रोटी स्कीम जो उन्होंने शुरू की है, हम समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों का भला होगा। उन लोगों का सफ़ेद पोश का जो खरीद नहीं सकते हैं, लिहाजा आवाम को चाहिए कि इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्य खैर में सवाब भी कमाएं और दुआएं भी लें। की टोकरी सच न्यूज़ का एक बहुत अच्छा और एहसान इक़दाम है। इससे सफ़ेद पोश तबका इंतहाई मुस्तफ़ीद हो रहा है। इस अमल को जारी रहना चाहिए। जो जिस तरह के हालात हैं आजकल मुल्क में लॉकडाउन के, इस तरह के प्रोग्राम की और इस तरह की काविश की एक ज़रूरत थी मुल्क में। जो सच न्यूज़ चला रहा है, ये एक ऐसा इक़दाम है। हम सच न्यूज़ नेकी की टोकरी के इस इक़दाम को सराहते हैं। हमारे माशरे में इस किस्म के इक़दाम की अशद ज़रूरत है। इस किस्म के इक़दाम से हमारे सफ़ेद पोश तबका की मदद की जा सकती है। सच न्यूज़ ने आगाज़ किया है नेकी की टोकरी का। विजयवाला में जगह जगह नज़र आ रही हैं ये विजयवाला में इन्होंने नेकी की टोकरियां जो है रखी हैं। तो इसमें इस कार्य खैर में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये एक सदका जारिया है, बहुत ही अच्छी काविश है। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के ऐलान पर दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे इख्तियार सोलंगी।
भर में लॉकडाउन में नरमी के ऐलान से जहां मुल्क भर के दुकानदारों व शहरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान व वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इस फैसले को खुश आइंद करार देते हैं। शहरियों का कहना था कि SOP पर अमल करके हमें आगे बढ़ना है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। हम ये देख रहे हैं कि जो 2 माह से लॉकडाउन था तो ये गरीब तबके वाले बंदे, ये दुकानदार, हल्के फुल्के कारोबार वाले बहुत परेशान थे। अब कारोबार इंशाल्लाह चालू होगा और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो ये बीमारी है कम होगी। अल्लाह के हुक्म से हम CM को जस देते हैं कि लॉकडाउन का ख़त्म का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत के जो ये फैसला है नरमी से जो लॉकडाउन जो खत्म करने का फैसला है उससे हम बहुत खुशी हुए हैं। और हमारे जो यहाँ पर जो व्यापारी तबका है और दिन दिहाड़ी वाले मजदूर हैं उनमें जो है बड़ी खुशी की लहर पाई जा रही है। यहाँ पर जो आज जो हमें देखने में आया है तो लॉकडाउन की नरमी की वजह से बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं और जो आवाम का एक हजूम है वो भी सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो है ना वो देखने में आ रहा है। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद शहर की रौनकें लौट आई हैं। अब जरूरत इस अमर की भी है कि हमें SOP पर अमल करते हुए कोरोना से बचना भी है। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर। अंजुमन समाजी बहबूद और इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियावाली के जेर एहतमाम 2400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। अंजुमन समाजी बहबूद और इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियावाली के जेर तमाम 2400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन अंजुमन समाजी बहबूद और चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियावाली मेंबर इस्लामी रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हसन नकवी की काविशों से माह रमजान के पहले अशरे में 2400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इससे 2 हफ्ते पहले लॉकडाउन की वजह से मुतासर होने वाले दिहाड़ीदार मजदूर तबका के लिए भी 800 खानदानों में राशन तकसीम किया गया था। यूं 1 माह के अंदर अंजुमन समाजी बहबूद और इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियावाली के जेर तमाम 3200 घरों में राशन तकसीम किया गया, जिनमें से सिर्फ माह रमजान के पहले अशरा में 2400 खानदानों में राशन तकसीम हुआ। राशन लेने वाले मुस्तहिक अफराद का कहना था कि गुर्बत और बेरोजगारी के बायस माह रमजान में सैर अफ्तार बहुत मुश्किल थी, लेकिन शुक्रगुजार हैं अल्लामा सैयद इफ्तिखार हसन नकवी के कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में महीने भर का राशन फराहम करके हमारी दाद रसी की। को पूरा राशन मिला है जी, मैं जरा था थोड़ा शुक्रगुजार हूँ, महीने ना राशन मेरे को मिला है। अंजुमन समाजी बहबूद इमाम खुमैनी ट्रस्ट के शोबे रिलीफ के इंचार्ज सैयद इब्रार हुसैन और मौलाना मूसा रजा का कहना था कि हमारी पूरी टीम मौलाना मूसा रजा, सर सजाद हुसैन की सरबराही में शब रोज राशन पहुंचाने में मसरूफ रही। हमने इस साल भी जिला मियावाली में 2400 मुस्तहिक गिरानों में राशन तकसीम किया है। तो ये हमारा हर साल सिलसिला होता है। तादाद राशन गो के 2400 एक कम तादाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुस्तहिकीन की तादाद क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हमें हर जगह पे ये मसला रहता है कि मसलन अगर वहाँ पे उस गाँव में 200 मुस्तहिक हैं तो हम 100 मुस्तहिक तक पहुँचाते हैं, बाकी 100 रह जाते हैं। अंजुमन समाजी बहबूद इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस मियावाली जहाँ साल भर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में गरीब अफराद की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल रहता है, वहीं माह रमजान मुबारक में भी सैकड़ों मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन पहुँचाकर इनके सैर अफ्तार के लिए आसानियाँ पैदा करता है। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियावाली। ज़ाहिर पीर में मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए मुखैर हजरात मैदान में आ गए। 300 खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। गफ्फार रशीद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वबा की वजह से योमिया मजदूरों का रोजगार शदीद मुतासिर हुआ है, जिनकी इमदाद के लिए सऊदी बादशाह किंग सलमान के तामुन से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और ओवरसीज पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे ने इस मुश्किल की घड़ी में ज़ाहिर पीर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सरदार राशिद सईद खान को 30 लाख का राशन दिया, जो 300 मुस्तहिक घरानों में तकसीम किया गया। जी, हम मशकूर हैं इस जरूरत की इस घड़ी में, मुश्किल वक्त में किंग सलमान के, जिन्होंने पाकिस्तानी को याद रखा, कोरोना वायरस मुतासरीन की मदद के लिए वो आगे है। उन्होंने राशन भेजा, ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने यहाँ रहीम खां दूर अफ्तादा ज़िला में लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए ये तकरीबन 30 लाख मालियात का सामान पहुँचाया। और चौधरी वसीम अख्तर रामे साहब हमारे ओवरसीज़ पंजाब के वाइस चेयरमैन हैं, उनके भी मशकूर हैं। उनकी इसमें बड़ी काविश है। अल हयात फाउंडेशन है पंजाब की, उसमें उसकी बड़ा हिस्सा है। ये राशन पहुंचाने तक, लोगों को रिलीफ पहुंचाने तक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। शुक्रिया गवर्नर पंजाब। मुस्तहिक खानदानों को राशन की तकसीम मेरिट पर की गई। 1 माह का राशन मिलने पर बेरोजगार अफराद ने सऊदी बादशाह किंग सलमान, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी वसीम अख्तर रामे और सरदार राशिद सईद खान घलेजा का शुक्रिया अदा करने के साथ दुआएं दी। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, रिंद, सच न्यूज़, ज़ाहिर पीर। डेरा गाजी खान में मुस्तहिक और नादार अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे।
डेराजी खान कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम और लॉकडाउन के बहस दिहाड़ीदार मजदूर तबका घरों में महसूर होने के बहस इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए SKT वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आ गई। कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले गरीब और नादार अफराद में रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में मुस्तहक और नादार फैमिलीज में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले में 200 घरानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर मकसूद अख्तर लिगारी ने कहा कि रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली एशिया जिनमें आटा, चावल, चाय और दीगर एशिया शामिल है कि पैक्स बनाकर हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की मेहमान खसूसी वजीर मौसमियात मोहतरमा जरताज गुल थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मुतासर होने वाले मजदूर और दिहाड़ीदार तबका और मुस्तहक अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इनकी मदद करना हमारा अवलीन फर्ज है। उन्होंने कहा कि राशन की तकसीम के दौरान हुकूमत की जानिब से दी गई एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेराजी खान। माँ तो माँ होती है, इसका कोई नेमुल बदल खालिके कायनात ने पैदा ही नहीं किया। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती। सरजमीने करबला में उन माओं के हौसले को हमारा सलाम। खुदा की मोहब्बत देखना हो तो माँ की औलाद से मोहब्बत देखी जाए। एक माँ अपने इस्माइल को बचाने के लिए 7 बार सफा व मरवा के दरमियान दौड़ी थी। खालिक कायनात को माँ की यह मोहब्बत इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि माँ बेटे का ये वाकया रहती दुनिया के इंसानों के लिए जिंदा रखूंगा। इसीलिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। तारीख कुछ आगे बढ़ती है और फिर इसी सफर में एक मंजिल करबला है। यहाँ कुदरत खुद हैरान हुए जा रही है। मैदान करबला में मोहब्बत और उल्फत की पैकर माएँ हैं। आज उनको क्या हो गया है। हर खेमा में बेटों की दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर कुर्बानी की तैयारी खुद माएँ कर रही हैं। हर माँ की ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो वो उसका नूर नजर हो। करबला का जो हर एक साहिब दिल कायल है, इसकी तबलीग में ज़ैनब का लहू शामिल है। यहाँ अली अकबर से कड़ियल जवान की वालिदा लैला हैं। यहाँ 6 माह के असगर की माँ भी है। इस माँ ने अजीम जहाद किया है। कमसिन नौजवान कासिम की माँ उम्मे फरवा है। यहाँ ओन मोहम्मद से बच्चों की माँ बीबी जैनब है। यहाँ हजरत वहाब कल्बी से जवान की माँ खुद से अपने बेटे को दूल्हा की तरह तैयार करके आई हैं। बुलंद हौसले मारिफत की ऐसी महराज, ये अमल सालिह की इंतहा, ये करबला की माएँ हैं। अज़्म जुरत की अजीम चट्टाने, दीन मुबीन की बुनियादों को मुस्तहकम करने वाली हस्तियाँ, मुआशरे में खवातीन के नए किरदार का रुख मुतय्यन करने वाली ये माएँ बिलाशुबह रहती दुनिया तक ऐसी ही माएँ तरबियत औलाद के लिए बेहतरीन नमूना है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। सरापा मेहरो मोहब्बत, औलाद की खातिर जिंदगी भर कुर्बानी देने वाली जज्बा इसार की अमली तस्वीर माँ। आइए सब मिलकर उस अजीम हस्ती को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। माँ कुदरत का अनमोल तोहफा, माँ वो हस्ती जो खूनी जिगर से औलाद को पालती है, अपनी औलाद की आराम की खातिर सुख चैन कुर्बान कर डालती है। एक रिश्ता है जमाने में मोहब्बत के लिए, प्यार जिसका नहीं दुनिया में तिजारत के लिए। दुनिया के मसाइब व आलाम के सामने औलाद के लिए फौलादी ढाल बन जाती है। खुद भूखी रहकर अपना नवाला औलाद को दे देती है। बाप का साया औलाद के सर से उठ भी जाए तो प्यार किए जाती है। औलाद की खातिर बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सह लेती है। जिंदगी भर भी खिदमत की जाए तब भी माँ के एहसानात का बदला नहीं चुकाया जा सकता। जमा का गम कुरान भी समझाता है, माँ के कदमों में है जन्नत यही बतलाता है। माँ की अजमत इससे बढ़कर क्या होगी कि खालिके कायनात ने जन्नत भी उसके कदमों तले रख दी। जलालपुर भटिया में अनगिनत माएँ ऐसी हैं जो अपने आलमी दिन से बेखबर मर्दों के शाना बशाना खेतों में काम करने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहाद मुनीर।
जलालपुर भटिया समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन देहाती माएँ आलमी दिन से बेखबर मर्दों के साथ शाना बशाना काम करने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक माँ है जो तेज धूप में एक भट्टा खश्त पर मिट्टी से ईंटें बनाने में मसरूफ है। ये भी माएँ हैं जो तेज धूप में बच्चों का पेट पालने के लिए गंदम की कटाई कर रही है। इस माँ को देखें कि कड़ी धूप में भैंसों के गोबर के आपले बना रही हैं। और नाजरीन, ये भी माएँ हैं जो तेज चिलचिलाती धूप में न सिर्फ मर्दों के साथ बल्कि मर्दों से भी आगे सड़क बनाने में मसरूफ अमल हैं। नाजरीन, माँ एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन ऐसी मेहनती माँ के बच्चे अगर जवान होकर नाफरमान हो जाएं तो ये माएँ किससे फरियाद करें। कैमरामैन गुलाम हुसैन भुट्टा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज़, जलालपुर भटिया। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का आंसुओं के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ। जान कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, अरे कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। शादियां कर कर के बच्चे जा बसे परदेस में, अब दिल खतों से और तस्वीरों से बहलाती है माँ। अल्लाह इतनी सारी बेरुखी के बावजूद बदुआ देती नहीं, हरगिज़ न पछताती है माँ। साल भर में या कभी हफ्ते में जुम्मे रात को उम्र भर खिदमत का सिला एक फातिहा पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, अरे कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं
सकता कभी माँ का अदा। अरे मरते मरते भी दुआ जीने की दे जा, सबसे पहले जान देना फातिमा के लाल पर। रात भर मोहम्मद को ये समझाती है माँ, अल्लाह अल्लाह इत्तेहादे सब्र लैला ओ हुसैन। अरे बाप ने खींची सीना सीने को सहलाती। सिंध और बलोचिस्तान के कारीगरों के फन का शानदार मुजाहिरा। ठुल के कस्बे कोट जंगू की जामे मस्जिद एक तारीखी मुकाम रखती है। इस मस्जिद को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठुल के कस्बा कोट जंगू की जामे मस्जिद एक तारीखी मकाम रखती है। ये ठुल की वाहिद तारीखी मस्जिद है जिसे जंगू खान खोसा के बेटे नूर मोहम्मद खान खोसा ने 1870 में तामीर करवाया और इस मस्जिद को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। जामे मस्जिद अपनी नौइयत की वाहिद मस्जिद है जो मुगलिया फन तामीर से मुतासिर होकर बनाई गई। मस्जिद की तामीर में सिंध और बलोचिस्तान के कारीगरों ने अपने फन का मुजाहरा किया और मस्जिद को देरपा हुस्न बख्शा। नूर मोहम्मद खान खोसा ने अपने खानदानी मिस्त्री को इंडिया के शहर दिल्ली भेजा और वहाँ से जामे मस्जिद का नक्शा तैयार करवाया और इस्तेमाल के लिए मटीरियल ऊँटों पर लाद कर दिल्ली से लाया गया। जामे मस्जिद 3 गुंबदों पर मुश्तमिल है और 2 बड़े मीनार मुतअद्दिद छोटे बुर्ज मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मस्जिद के अंदर तीनों गुंबदों के मेहराबों और दीवारों पर गुलकारी और काशीकारी के नादर नमूने नजर आ रहे हैं। गुलकारी के ये तीनों नमूने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जबकि जामे मस्जिद में काशीकारी का काम देखने के काबिल है। काशीकारी के लिए पंजाब के शहर मुल्तान और सिंध के शहर हाला हैदराबाद से उस वक्त के नामवर काशीगर मंगवाए गए। मस्जिद के अंदर जो काशीकारी का काम किया गया है उसके नक्शो निगार और रंगत आज भी तरोताज़ा हैं। जामे मस्जिद के अंदर और बाहर एक ही वक्त में 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और मस्जिद के बाहर सामने वाली मेन गेट पर 6 मुसाफिर खाने भी बनवाए गए थे जहां पर दूर दराज से आने वाले मेहमानों को तरसाया जाता था। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।